آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی تھی سدرشن نیوز چینل کو بین کرنے کی، بنداس بول کے ان شوز پر پابندی لگانے کی جس میں کہا گیا ہے کہ مسلمان UPSC جہاد کا ایجنڈا چلا رہے ہیں، لیکن BJP حکومت نے کورٹ کا رخ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف پھیر دیا ہے اور کہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے بجائے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے گائیڈ لائنز جاری کیا جائے، اس کے لیے حدیں طے کی جائے کیونکہ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کا مطلب یہ یوٹیوب، فیس بک، نیوز پورٹل، ویب سائٹ، موبائل ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر اور واٹس ایپ وغیرہ ہے جس کے ذریعے ہم آپ تک پہنچتے ہیں۔ کیا ہے پورا معاملہ اور سپریم کورٹ میں میڈیا کے تعلق سے کیا بحث چل رہی ہے، بتائیں گے پوری تفصیل آج خبر در خبر میں، لیکن پہلے آج کی یہ 5 اہم نیوز۔ مہاراشٹرا میں بھیڑ کے ذریعے تبلیغی جماعت کے 2 ممبر پر حملہ کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ مراٹھوار کے بیڑ ضلع میں شرپسند ہندوؤں نے ضلع کے دھاروں سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت کے افراد کو 16 ستمبر کی رات میں ایک جگہ روک لیا، فون کر کے کچھ اور ساتھیوں کو شرپسندوں نے بلا لیا۔ تقریباً 6-7 لوگ وہاں آ گئے اور سب نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، لوہا، پتھر اور رٹ سے دونوں کو مارا اور مار کر وہی چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کو لگا کہ مر گیا ہے، جس کے بعد سبھی فرار ہو گئے۔ بعد میں انہیں ہسپتال پہنچایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں کل رات 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے علاوہ مزید 3 افراد کی پہچان کی گئی ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے سرچ ٹیم بنائی گئی ہے۔ جلد ہی انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ چین نے بالآخر اعتراف کر لیا ہے کہ لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن یعنی LAC کے قریب وادی گلوان میں 15 جون کو ہندوستانی فوج کے ساتھ پرتشدد جھڑپ میں اس کے فوجی بھی مارے گئے تھے۔ وادی گلوان میں کتنے چینی فوجی مارے گئے تھے اس بارے میں سرکاری تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے، لیکن گلوبل ٹائمز نے پہلی بار چینی فریق کے نقصان کا اعتراف کیا ہے۔ اس سے قبل وہ اپنے فوجیوں کی ہلاکت کی خبروں کو مسترد کر رہا تھا۔ دوسری طرف آج پہلی مرتبہ بھارت نے بھی یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ لداخ میں چین بھارت کے 38,000 کلومیٹر مربع رقبے پر قبضہ کر چکا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت کی 1 انچ زمین بھی کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے آسام حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ گائے کے نام پر موب لنچنگ کا شکار ہونے والے شوکت علی کو 1 لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کرے۔ 68 سال کے شوکت علی کو تقریباً 1 سال پہلے آسام کے بسونات چریالی قصبے میں ہندو انتہا پسندوں کے مشتعل ہجوم کی طرف سے گائے کا گوشت بیچنے کے شک میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اسے خنزیر یعنی سور کا گوشت بھی کھانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے نماز جمعہ کے بعد سمسک بحری جہاز اور روچ رئیس جہاز کے بارے میں کہا کہ بحری جہاز ضروری مرمت اور دیکھ بھال کے لیے لنگر انداز ہوئے ہیں انطاکیہ میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مذاکرات کی طرفدار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بحیرہ روم میں تلاش کا کام ہم روک دیں گے۔ دیکھ بھال ختم ہو جانے پر یہ جہاز واپس اپنے کام پر چلا جائے گا اور کام شروع ہو جائے گا۔ کسانوں کی تحریک مسلسل مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ NDA اتحادی اکالی دل کی ہرسمرت کور کے استعفیٰ دینے کے بعد اب NDA کے ایک اور اتحادی دشینت چوٹالہ پر دباؤ بڑھ گیا ہے اور ہریانہ کے کسانوں کا مطالبہ ہے کہ وہ بھی نائب وزیر اعلیٰ کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیں۔ دشینت چوٹالہ کی پارٹی کا ہریانہ میں BJP کے ساتھ الائنس ہے اور وہ نائب وزیر اعلیٰ ہیں۔ مرکزی وزیر ہرسمرت کور نے کل کسان مخالف بل پاس ہونے کے بعد اپنی ناراضگی جتاتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں آج کے اصل مدعے کی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں سدرشن نیوز چینل کے خلاف کیس کی سنوائی ابھی جاری ہے۔ 15 ستمبر کو سپریم کورٹ کے ججز نے سدرشن نیوز چینل کے بنداس بول کے UPSC جہاد والے کئی ایپیسوڈ کو بین کر دیا تھا اور براڈ کاسٹ منسٹری سے جواب طلب کیا تھا۔ 17 ستمبر کو براڈ کاسٹ منسٹری نے 12 پیج پر مشتمل جواب داخل کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ پہلے ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے کیونکہ اس کی پہنچ اور اس کی ریچ ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے بھی زیادہ ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کا مطلب نیوز پورٹل، ویب سائٹ، یوٹیوب، فیس بک، موبائل ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، واٹس ایپ وغیرہ ہے۔ 12 پیجز پر مشتمل حلف نامے میں مرکزی حکومت کی جانب سے براڈ کاسٹ منسٹری کے جوائنٹ سیکریٹری وجے کوشک نے لکھا ہے،
सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी मुकर्रर किए बगैर मीडिया में हेट स्पीच को लेकर कोई भी ज़ाब्ता या कोई उसूल और हिदायत जारी नहीं करना चाहिए। हुकूमत ने आगे कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने का फैसला करती है तो अदालत को पहले डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए और इससे मुताल्लिक़ हिदायत जारी करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हवाले से पहले ही काफ़ी फ्रेमवर्क और अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। बीजेपी हुकूमत ने हलफनामे में यह भी लिखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया की लिस्ट में आने वाले मीडिया में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, यहाँ जो चीज़ भी शाये होती है या जो चीज़ दिखाई जाती है वो एक ख़ास वक्त के लिए होती है, मखसूस वक्त में ही उसको देखा जा सकता है, जबकि डिजिटल मीडिया ऑडियंस यानी नाजरीन या क़ारीन के एक बड़े ग्रुप तक बहुत जल्द पहुँच जाता है और व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए उसके बहुत ज़्यादा वायरल होने का भी इम्कान होता है। इसलिए मीडिया के नफ़ा और नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी है कि ऑनरेबल कोर्ट यानी मुअज़्ज़ज़ अदालत अगर ज़ाब्ते का फ़ैसला करती है, कोई हिदायत जारी करती है, तो पहले डिजिटल मीडिया के सिलसिले में ऐसा करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लिए पहले से ही काफ़ी फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस मौजूद है। मरकज़ी वज़ारात ने अपने हलफनामा में 2 पुराने मुक़द्दमात और साल 2014 और 2018 में उनके फ़ैसलों का हवाला देते हुए बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मामले में नफ़रत अंगेज़ तकरीर का वाज़ेह हवाला मौजूद है, लेकिन डिजिटल मीडिया के लिए इस हवाले से कोई भी गाइडलाइंस मौजूद नहीं है। मरकज़ी हुकूमत का यह भी कहना था कि इस मामले को पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने के पेश नज़र मौजूदा पिटीशन को सिर्फ एक चैनल तक महदूद नहीं रखा जाना चाहिए, यानी सिर्फ सुदर्शन टीवी के लिए कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए और न ही सुप्रीम कोर्ट को कोई कमेटी तश्कील दिए बगैर चैनलों के हेट स्पीच के मामले पर कोई गाइडलाइंस और फैसला देना चाहिए। हलफनामे में विजय कौशिक ने यह भी लिखा है कि अगर अदालत ज़ाब्ते के साथ आगे बढ़ती है और कुछ नए रहनुमा खतूत जारी करने का फ़ैसला करती है तो उसकी कोई वजह नहीं है कि इसे सिर्फ मरकज़ी धारे की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ही महदूद रखा जाए, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में शामिल प्रिंट मीडिया के अलावा डिजिटल मीडिया, वेब पर मबनी न्यूज़ पोर्टल, यूट्यूब चैनल और OTT जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी फैसला किया जाए, उनके लिए भी गाइडलाइंस और रहनुमा उसूल तय किए जाएं, सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए ही क्यों। 17 अगस्त जुमरात से पहले 15 अगस्त मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया और ख़ास तौर पर सुदर्शन न्यूज़ चैनल के UPSC जिहाद वाले शो पर तफसील से बहस की। मंगल को ही सुप्रीम कोर्ट ने बिंदास बोल के बकिया शोज़ पर पाबंदी आयद कर दी थी और सख्त एतराज़ करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि यह प्रोग्राम मुसलमानों को बदनाम करता है और इसी मकसद से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मंगल को सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच की सदारत करते हुए जज DY चंद्रचूड़ ने कहा, इस चैनल के ज़रिए जो दावे किए जा रहे हैं वो ख़तरनाक हैं और UPSC इम्तहान की साख पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, एक एंकर आता है और कहता है कि ख़ास तबका UPSC में घुसपैठ कर रहा है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक और क्या हो सकता है। इस तरह के इल्ज़ामात से मुल्क कमज़ोर होगा, मुल्क का सिस्टम और निज़ाम मशकूक हो जाएगा, क्योंकि चैनल ने मुसलमानों को नहीं बल्कि UPSC इम्तहानात की साख को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि हर वो शख्स जो UPSC के लिए दरख्वास्त देता है वह इंतखाब के तयशुदा ज़ाब्तों से गुजर कर आता है और ये प्रोग्राम इस बात की निशानदही करता है कि कम्युनिटी सिविल सर्विसेज में घुसपैठ की कोशिश कर रही है। मतलब ये कि UPSC के ज़ाब्तों और उसूलों से गुजरे बगैर ही मुसलमान IAS, IPS और IS बन जाते हैं। इससे मुल्क को ही नुकसान हो रहा है, सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुदर्शन चैनल और मीडिया की जहर अफशानी के खिलाफ ये दरख्वास्त साबिक सिविल सर्वेंट के बनाए गए ग्रुप्स कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ से अमिताभ पांडे और नोरेखा शर्मा ने दायर की थी। इन्होंने कहा था कि उन्हें पार्टी बनाया जाए और मीडिया की जहर अफशानी पर पाबंदी लगाई जाए, चैनलों के लिए कुछ उसूल वज़ा किया जाए। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के 5 मुमताज़ शहरियों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाने की हिदायत दी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मयारी रहनुमा उसूल और ज़ाब्ते बनाएगी। अदालत ने वाज़े कर दिया था कि हमें उस कमेटी में सियासी मिजाज के लोगों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ऐसे शहरियों को मेंबर के तौर पर देखना चाहते हैं जिनका रुतबा काबिल सिताइश हो
अनूप जॉर्ज चौधरी ने अदालत को बताया कि पूरे मुल्क में सिविल सर्विसेज में कुल 292 मुसलमान अफसर हैं। उन्होंने बताया कि अगर आप सुदर्शन टीवी पर चलने वाले इस शो की स्क्रिप्ट को देखें तो उसमें कहा गया है मुसलमान सिविल सर्विसेज में घुसपैठ कर रहे हैं, मुसलमान ओबीसी दूसरे लोगों का हिस्सा भी हड़प कर रहे हैं। इस शो में गिराफ के जरिए मुसलमानों के लिए हराम और गद्दारों जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने नोट किया कि पिटिशनर मीडिया रिपोर्टिंग के लिए रहनुमा उसूल चाहते हैं, गाइडलाइंस चाहते हैं। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि देखने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसकी मिल्कियत है और कंपनी के तमाम शेयर होल्डर्स का उसलूब क्या है। ये तमाम तफसीलात आवाम की मालूमात के लिए कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद होनी चाहिए। कंपनी का रेवेन्यू मॉडल यानी आमदनी का नमूना और निज़ाम कैसा है वो भी वेबसाइट पर अपडेट होना चाहिए। मालूम होना चाहिए कि हुकूमत किसी एक चैनल को ज़्यादा इश्तिहारात और किसी को कम तो नहीं दे रही है। जस्टिस जोसेफ ने टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट के तरीक़ेकार और उनकी नौयत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह भी देखने की ज़रूरत है कि बहस के दौरान एंकर का किरदार कैसा होता है, क्या होता है, जब दूसरे बोलें तो कैसे सुना जाता है। ये चेक करने की ज़रूरत है कि एंकर ख़ुद कितना वक्त लेता है और वो गेस्ट को कितना वक्त देता है। क्या वो गेस्ट की आवाज़ तो बंद नहीं कर देता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुदर्शन के एडिटर इन चीफ की जहनीत पर तबसरा करते हुए कहा उन्हें शिकायत है कि ख़ास ग्रुप सिविल सर्विसेज में दाखिल हो रहा है। ये कितनी ख़तरनाक और छल कपट वाली बात है। ऐसे अहमकाना इल्ज़ामात खुद यूपीएससी इम्तहानात पर भी सवाल खड़े करते हैं। ये इल्ज़ामात बग़ैर किसी हकीकी बुनियाद के लगाए गए हैं। इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? क्या एक आज़ाद माशरे में ऐसे प्रोग्राम की इजाज़त दी जा सकती है? क्या मीडिया के लिए ऐसे रहनुमा उसूल नहीं होने चाहिए जिसकी बुनियाद पर खुद मीडिया आर्टिकल 19A1 के दावे पर पूरा उतर सके? इस मौका पर मरकजी हुकूमत के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जस्टिस जोसेफ के बयान का दो मतलब निकलता है। मीडिया पर कंट्रोल जमहूरियत के लिए ख़तरनाक होगा। इस पर जस्टिस जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा कि जब हम सहाफ़ती आज़ादी की बात करते हैं तो मुतलक नहीं है। सहाफ़ी को वही आज़ादी हासिल है जो इस मुल्क के दूसरे आम शहरियों को हासिल है। अमेरिका की तरह यहाँ भी सहाफ़ियों के लिए कोई अलग किस्म की आज़ादी नहीं है। हमें ऐसे सहाफ़ियों की ज़रूरत है जो डिबेट के दौरान मुनसिफाना रवैया इख्तियार करें। उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा मुल्क के बेहतरीन दिमागों के ज़रिए इन इक़दामात की तजावीज़ आने दीजिए जो हमारे अदलिया की बहस में मुआविन साबित हो और फिर मेयार तय किए जाएँ। इस वक्त एक एंकर एक ख़ास कम्युनिटी को निशाना बना रहा है, यानी सुदर्शन न्यूज़ चैनल का मालिक, ये कहने के लिए कि हम एक जमहूरियत हैं, हमें कुछ उसूल तय करने पड़ेंगे। इस पर सुदर्शन टीवी के वकील श्याम दीवान ने जवाब देने के लिए कुछ मोहलत मांगी। जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा आपका मुवक्किल मुल्क को बर्बाद कर रहा है और हिंदुस्तान की गंगा जमनी सकाफ़त को कबूल नहीं कर रहा है। आपके मुवक्किल को अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करनी पड़ेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की वकील निशा भंभानी से पूछा हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या लेटर हेड के अलावा भी आपका कोई वजूद है? आखिर आप उस वक्त क्या करते हैं जब मीडिया के ज़रिए जराइम की पैरेलल तहक़ीक़ात चल रही होती है और साख को दागदार किया जा रहा होता है? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से ही पूछ लिया कि मिसाल के तौर पर वकील गौतम भाटिया कुछ ऐसा लिख दें कि जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता और मैं मामला वाज़े करना चाहता हूं और मैं एक ऐसा घिनौना मजमून लिख दूं कि जिसका वो जवाब न दें, तो फिर आप उसे कैसे रेगुलेट करेंगे? इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने जवाब दिया लेकिन इसका मुआवजना आप नफ़ा कमाने वाली इकाइयों से नहीं कर सकते हैं। इल्मी फ़ायदे के लिए दानिशवराना मजमून ऐसी तंजीमों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा प्रोग्राम कोड का ज़ाब्ता नंबर 6 कहता है कि केबल टीवी प्रोग्राम ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखा सकते जो ख़ास मजहब और तबका को निशाना बनाए। इस मौका पर पिटिशनर के वकील शादान ने अदालत से कहा सुदर्शन का प्रोग्राम पूरे तौर पर सिविल सर्विसेज में मौजूद मुसलमानों की छवि ख़राब कर रहा है। उन्हें दहशतगर्द कहा गया है। मुनाफरत अंगेज़ बयानात ऐसी चीज़ हैं कि जिसका कोई जवाब मुमकिन नहीं है। आखिर इस बयान का क्या जवाब दिया जाए कि सिविल सर्विस में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए?
सुदर्शन के वकील श्याम दीवान ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा, लेकिन उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया कि बाकी एपिसोड नहीं दिखाए जाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि इस प्रोग्राम का खुलासा क्या है, तो दीवान ने जवाब दिया कि वो समझते हैं कि एक तहकीकाती स्टोरी है, इसका ताल्लुक मुल्क की सलामती से है और इन लोगों के मफाद में है। इसमें ऐसे मुल्कों से भारी फंड आ रहा है जो कि हिंदुस्तान के दोस्त ममालिक नहीं हैं, और सुदर्शन टीवी समझता है कि उसका फ़र्ज़ है कि वो लोगों को इससे आगाह करे। जस्टिस जोसेफ ने कहा, जैसे ही 2 हफ्तों की मोहलत ख़त्म होगी ये प्रोग्राम भी ख़त्म हो चुका होगा। हुकूमत ने आपसे कहा था कि प्रोग्राम कोड की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, आपका जुर्माना अब क्या हो। शादान ने अदालत के सामने सुदर्शन के उस प्रोग्राम की कुछ क्लिप्स रखी। अदालत ने क्लिप्स गौर से देखी और फ़ौरन सुदर्शन को हिदायत दी कि 17 सितंबर तक बाकी शोज़ न दिखाए। श्याम दीवान ने इस हिदायत पर सख्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम पर पेशगी पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। हम 4 शोज़ दिखा चुके हैं, अगर ये पेशगी पाबंदी है तो मैं इस्तेदलाल करूँगा गैर मुल्कों से फ़ंड आने का साफ लिंक मौजूद है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हमें तशवीश इस बात की है कि जब आप कहते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा इस ग्रुप का हिस्सा है जो सिविल सर्विसेज में घुसपैठ कर रहे हैं, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुल्क का सुप्रीम कोर्ट होने के हैसियत से हम आपको कहने की इजाज़त नहीं दे सकते कि मुसलमान सिविल सर्विसेज में घुसपैठ कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जर्नलिस्ट यानी सुरेश चौहान को ऐसा करने की पूरी आज़ादी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, क्या 9 सितंबर को ब्रॉडकास्ट मंत्रालय ने इस प्रोग्राम को 11 और 14 सितंबर को दिखाने की इजाज़त देते वक्त दिमाग का इस्तेमाल किया था? इस पर तुषार मेहता के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत से पूछ कर बताऊंगा। 17 सितंबर को अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन मंत्रालय ने कोर्ट का रुख डिजिटल मीडिया की तरफ फेर दिया और उस दिन जो कुछ हुआ वो शुरू में हम आपको बता चुके हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने शोज़ दिखाने की इजाज़त नहीं दी है। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 अगस्त को इस प्रोग्राम पर रोक लगा दिया था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा की दरख्वास्त की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज नवीन चावला ने कहा था कि 7 सितंबर तक इस प्रोग्राम पर पाबंदी आयद रहेगी और ऑन एयर नहीं किया जा सकेगा। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से वजाहत तलब किया था, लेकिन 10 सितंबर को ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने चैनल को ये प्रोग्राम ऑन एयर करने की इजाज़त दे दी और इस तरह वो प्रोग्राम 10 सितंबर को ही टीवी चैनल पर नशर हो गया, जिसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत की गई थी। हाई कोर्ट में समाअत के दौरान मरकज़ी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात ने कहा था कि उन्हें सुदर्शन न्यूज़ के इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ बहुत सी शिकायत मौसूल हुई है और वज़ारत ने न्यूज़ चैनल को नोटिस जारी करके इसका जवाब तलब किया है। 10 सितंबर को मंत्रालय ने अपने ऑर्डर में लिखा कि सुदर्शन चैनल के चीफ एडिटर सुरेश चौहान ने 31 अगस्त को बाज़ाब्ता तौर पर अपना जवाब दाखिल कर दिया था, जिसके बाद मंत्रालय ने फैसला किया है कि अगर उस प्रोग्राम के मवाद ने किसी तरह कानून की खिलाफ वर्जी की है तो चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत ने भी कहा कि प्रोग्राम चलाए जाने से कबल इस प्रोग्राम के स्क्रिप्ट को तलब नहीं किया जा सकता और न ही उसकी नशरियात पर पाबंदी आयद की जा सकती है। इस हुक्म के मुताबिक सुदर्शन चैनल ने दावा किया कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में किसी उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं की है और कहा कि इस तरह की पाबंदी ऑन एयर होने से कबल टीवी प्रोग्रामों पर सेंसरशिप लगाने के मुतरादिफ है। मंत्रालय ने अपने ऑर्डर में वाज़ेह किया कि टीवी प्रोग्रामों की प्री सेंसरशिप ज़वाबित के मुताबिक नहीं की जाती। फिल्मों, फिल्मी गानों, फिल्मों के प्रोमोज, ट्रेलर्स वगैरह के लिए प्री सेंसरशिप की ज़रूरत होती है, जिसके लिए CBF से सनद की ज़रूरत होती है। मंत्रालय ने सुदर्शन चैनल को यह ख्याल रखने की हिदायत की थी कि किसी भी तरह से प्रोग्राम कोड की खिलाफ वर्जी न की जाए, बसूरत दिगर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पूरा मामला क्या है? सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने 25 अगस्त को एक प्रोमो जारी किया था, जिसमें उस चैनल के एडिटर इन चीफ ने दावा किया कि 28 अगस्त को नशर होने वाला उनका प्रोग्राम बिंदास बोल UPSC जिहाद पर होगा, जिसमें वो बताएंगे कि मुसलमान कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आला ओहदों में घुसपैठ करके जिहाद फैला रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। जैसे ही प्रोमो ट्विटर पर आया, तनकीद शुरू हो गई। समाज के सभी तबका ने शदीद एतराज़ किया और इस शो को बैन करने की मांग की। मुल्क के 100 से ज़्यादा दानिश्वरों ने वज़ीर दाखिला, सदर जमहूरिया वगैरह को ख़त लिखा,
لیکن ایسا لگتا ہے کہ مرکزی حکومت ایسے چینلوں کے خلاف نہیں ہے، سرکار کی منشا ہے کہ ایسا چینل جاری رہے۔ سدرشن نیوز چینل RSS اور BJP کے مین ایجنڈا کو چلاتا ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ سرکار کبھی بھی چاہے گی کہ سدرشن کے کسی پروگرام کو بین کر دیا جائے۔ اس لیے جب سپریم کورٹ نے سدرشن چینل کے کچھ ایپیسوڈ کو بین کر دیا ہے اور میڈیا کے سلسلے میں گائیڈ لائنز جاری کرنے کی بات کی ہے یا فیصلہ کیا ہے، تو حکومت نے کورٹ کا رخ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کی طرف پھیر دیا ہے، اور حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے بارے میں اصول بنایا جائے، ضابطہ بنایا جائے۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہندوستان میں ابھی تک کوئی باضابطہ قانون موجود نہیں ہے۔ جو نیوز پورٹل ہے، جو یوٹیوب چینل ہے، وہ یوں ہی چلتے ہیں، وہ حکومت کی نظر میں باضابطہ میڈیا کے طور پر شامل نہیں ہے۔ سرکار نے کئی مرتبہ پہلے کوشش کی کہ ان کے لیے ضابطہ طے کیا جائے، کچھ اصول بنائے جائے، لیکن عوام نے مخالفت کی۔ خود وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، انہوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر ڈیجیٹل میڈیا کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے کچھ اس طرح کے اصول بنائے جاتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ سرکار نے ایک مرتبہ پھر یہ سوچا چھوڑ دیا ہے، اور وہ چینل جو مین اسٹریم میڈیا میں زہر افشانی کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، اور نمبر 1 ہے سدرشن نیوز چینل، اس پر بین لگانے اور اس کے ایپیسوڈ کو بین کرنے کے بجائے سپریم کورٹ کا رخ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف پھیر دیا ہے، اور دلیل دے دی ہے کہ سب سے زیادہ زہر افشانی ڈیجیٹل میڈیا پر ہی ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا پر سب سے زیادہ زہر افشانی کی جاتی ہے، اور جو کچھ ڈیجیٹل میڈیا کا حصہ دیکھتے ہیں ہم جیسے چینل کو کہ ہم لوگ سچ آپ کو دکھاتے ہیں، اس سے 10 گنا بڑا زیادہ وہ طبقہ ہے جو نفرت پھیلاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ سوشل میڈیا پر سچ دکھانے والے اگر 10% ہیں تو 90% وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو نفرت پھیلاتے ہیں، زہر افشانی کرتے ہیں، غلط خبریں پھیلاتے ہیں، فیک نیوز چلاتے ہیں، اور یہی سوشل میڈیا اس وقت مرکز کی مودی حکومت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انہی کے ذریعے سب سے زیادہ سپورٹ ملتا ہے مودی سرکار کو۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی اگلے شو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔